Most people pick one path. He didn't. AI, machine learning, music. Not choices, just skills. All at 21. This is So Siddharth. myself Siddharth, and for those who don't know, I just have an X account where I probably post my stuff, what I like, and just some of my technical clarities. So So here we go. अरे कैमरा मेरा हिल So here we go. We have Siddharth bhai, pseudo Siddharth if you don't know, and he have a tremendous amount of following on X. He literally have literally fan bases on X. So let's ask him to introduce himself a little more to our new viewers. yeah, so myself Siddharth, and for those who don't know, I just have an X account where I probably post my stuff, what I like, and just some of my technical clarities. So I'm just a normal person who does a normal job right now, and I'm just learning along the way, trying to fit into the ML and AI world. And yeah, that's it. So how many years it have been since you are into ML? So I started ML just when I was ending my first year. So when I was in my first year of college, I started with Python and stuff, and then by the end of the year, I started with basic ML. Okay. So can you please explain me ML like I am 10? Explain me ML I'm 10. Okay. So देखो इसका ना I have a simple formula for this कि अगर तुम्हें एक्चुअली में कुछ सीखना है ना तो just don't go with the flow like explain to me like I'm 5 year old or a 10 year old. That is for the layman's है ना. ताकि किसी को कुछ ऐसा पढ़ना है कि उसको एग्जाम में बस लिख के आना है कि just want to write down या कुछ लिखना है. अगर इंट्यूशन लेना है देखो एमएल या डीएल या कुछ भी हो गया उसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंट्यूशन है ना. तो तुम ऐसा इंट्यूशन लोगे 5 या 10 ईयर वाला ओल्ड ना तो तुम कभी डेप्थ में समझ ही नहीं पाओगे चीज को ऐसा आई फील है ना. बट स्टिल लाइक अगर एक समझाना हो किसी को एमएल फ्रॉम द वेरी ग्राउंड तो व्हाट आई कैन से इज जस्ट दैट अ मशीन दैट लर्न्स पैटर्न्स और एंड गिव्स अस आउटपुट्स बेस्ड ऑन द पैटर्न्स है ना. और थोड़ा टेक्निकल वे में समझाएंगे तो एमएल इज जस्ट अ मशीन दैट इज मेकिंग अ सर्टेन इक्वेशन और सर्टेन ग्राफ covering n number of data points trying to maximize those data points is what I can explain in the most raw form. ओके सो लाइक इफ आई हैव टू आस्क यू कि कोई ऐसा एप्लीकेशन बताओ एमएल का जो कि हम रियल लाइफ में एवरीडे यूज करते हैं बट हमने कभी रियलाइज नहीं किया कि वो एमएल के ऊपर बेस्ड है. ऐसे रियलाइज नहीं किया एमएल के ऊपर बेस्ड है. यार आई थिंक ये तो हर जगह ये जो हम गूगल यूज कर रहे हैं उसमें रिकमेंडेशन सिस्टम यूज हो रहा है. दैट इज हम्म पार्ट ऑफ एमएल है ना. हम रोज हम्म यूज कर रहे हैं गूगल पे. आजकल तो आई थिंक ये मेरे साथ रिसेंटली बहुत हो रहा है मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रहा हूँ इंस्टा पे तुरंत ऐड आ जाता है राइट. हाँ, तो कुछ आई बोल आई भी दो थिंक सम कुछ बोल भी दो. या एग्जैक्टली तो समहाउ दोनों लिंक्ड है तो व्हाट हैपेंस कि तुम कुछ भी सर्च करो इंस्टेंटली गोज इनटू द रिकमेंडेशन algorithm and you get similar recommendations right. That is ML right. It is learning patterns that what you are searching and it is finding similar kind of other buzzwords or similar kind of things that probably other people also searched when they search this thing right. So that's what ओके that is ML right. so like let's say if somebody wants to get into ML or AI because I remember and Ninja I said that AI ML are basically a terminology which can be interchanged. So how someone can literally identify if they fit for this field or they're just getting into it just because it have a very huge paychecks and we will later on find out that if that's true or not. Okay, so first of all, I never enjoy bhai, है ना? But I would love to deny from the fact that AI and ML can be changed interchangeably. मतलब Okay. ML is actually something that is a base to an AI engineer. मतलब you can learn AI without learning ML as well, right? Okay. But on the same time, if you have the ML knowledge, you are somehow a bit ahead while learning AI. Is what I feel because I initially started learning ML and then I went to AI, right? So from a perspective that I see someone else who is into AI is doing very well, right? He might not understand certain things at the very core level, while at the same time I can get those things very easily, or I may get interest easily while learning AI because I know ML at the core level also, right? सो दैट इज वन डिफरेंस दैट आई फील. और इसलिए मैं बोलता हूँ किसी ने ए आई स्लैश एम एल लिखा है बायो में तो मैं थोड़ा रेज बेट हो जाता हूँ है ना. आई डोंट लाइक दैट है ना. तो एंड समवन गेटिंग इनटू ए आई एम एल फील्ड आई वुड जस्ट से कि यार एम एल और ए आई में हल्का सा डिफाई आता है इसलिए बोलता हूँ मैं है ना. अगर मैं किसी को चेंज कर सिर्फ लूं अभी. क्या. अरे अरे यार मैं मजाक तो करो बोल रहा मजाक हूँ करो. एम एल इज लाइक अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस है ना. ए आई इज हाँ, रिलेटिवली अ शॉर्टर प्रोसेस है ना. जैसे मैं फ्रेंकली बताता हूँ आई स्टार्टेड ए आई अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो स्टार्टेड समवेयर अराउंड लास्ट ईयर अक्टूबर और नवंबर है ना. तो आई डाइव्ड इनटू लैंगचेन लैंग्राफ एंड स्टफ एनीटेन स्टफ वहां से मैंने स्टार्ट किया था है ना. तो दैट इज रिलेटिवली इजियर पाथ और जो ऑटोमेशन वाला पाथ है ना लर्निंग इवन लर्निंग एपीआईज है ना. तो
दैट इज समथिंग विच इज अ शॉर्टर पाथ, व्हाइल एमएल इज अ वेरी लॉन्गर पाथ, थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है ना। तो समवन डाइविंग इनटू एआई एमएल, आई वुड से हैव पेशेंस, है ना, फॉलो द ट्रेडिशनल पाथ, लर्न फ्रॉम द बेसिक्स। जस्ट वन थिंग, डोंट गेट स्टक इन एमएल, है ना। एमएल में बहुत लोग होते हैं कि मैथ स्टार्ट करते हैं, 6 6 महीने मैथ कर रहे हैं। आई एम समवन हु इज अगेंस्ट दिस, है ना, कि अगर तुम एमएल कर रहे हो, प्लीज डू इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन काम आने वाले हैं, है ना। यू विल फाइंड मैथ्स एट लॉट ऑफ प्लेसेस, है ना, बट इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा काम आएंगे। बहुत सिंपल सा फंडा है। मैं एक चलो एग्जांपल बताता हूँ, स्टोरी बताता हूँ छोटी सी, लाइक ये इट हैपेंड विथ मी सम टाइम बैक कि आई जस्ट एक्चुअली मेड अ मॉडल, और मैंने कुछ ट्रेन वन किया था, एंड आई जस्ट सेंड दैट होल कोड टू समवन, राइट। तो ही वाज लाइक ओके, और उसमें कहीं कोसाइन सिमिलरिटी यूज हुई थी, है ना। दैट गाय न्यू एमएल बाय द वे, है ना। तो ही वाज लाइक यार तूने कोसाइन सिमिलरिटी तो कहीं डिफाइन ही नहीं किया है, तो मैच कैसे कर रहा था। मैंने कहा मैं डिफाइन तो की हुई है। तो फिर मैं आई रीचेक की, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने मिस कर दिया। तो आई हैड डिफाइंड नाउ, व्हाट ही वाजंट गेटिंग इट, कि मैंने उसमें वेरिएबल्स भी थोड़े अजीब से दे रखे थे, बट स्टिल हाउ इट वाज डिफाइंड वाज वेरी सिंपली। कोसाइन क्या होता है, यू गेट द स्केलर ऑफ टू एंड देन डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू, राइट। तो मैंने ऐसे डिफाइन करा था कि मैंने एम्बेडिंग का नेम लिखा एंड देन आई मल्टीप्लाइड दिस डॉट प्रोडक्ट एंड देन डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। तो उसको नहीं समझ आया था। तो दैट इज जस्ट अ वेरी स्मॉल वेरी कोर लेवल ऑफ थिंग, कि आपको एमएल आ रही है, आपको मैथ नहीं आ रही ओके। है ना। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत तूफानी मैथ चाहिए आपको टू लर्न एमएल, है ना। एमएल पढ़ने के लिए आपको तूफानी मैथ्स नहीं चाहिए, बट आपको ये छोटी छोटी चीजें समझनी आनी चाहिए कि क्यों हो रहा है, बस दैट्स इट, है ना। तो आप मैथ करो थोड़ा सा, मूव टू इम्प्लीमेंटेशन, टेक अ रैंडम डेटा सेट फ्रॉम कैगल, और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ से डेटा सेट उठाओ, तुम काम करो, कुछ करो, है ना। इसरो का मैं तो कितने लोगों को रिकमेंडेशन देता हूँ कि अगर तुम कंप्यूटर विजन कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, है ना, इसरो का मॉसडैक का इतना बड़ा डेटा सेट है, इतना बड़ा टन ऑफ डेटा सेट, टीबीज में डेटा सेट है, और तुम्हें वो डेटा सेट ऑर्डर करना पड़ता है। तुम करो ना ऑर्डर, वो एक हफ्ते बाद आएगा तुम्हारे पास डेटा सेट। उसमें क्लाउड्स का डेटा सेट है तुम्हारे पास, वेदर का डेटा सेट है जो तुम्हें नॉर्मली नहीं मिलेगा, ऑफिशियल डेटा सेट है ना। उस पर एक्सपेरिमेंट करो यार। इतने सारे तो डेटा सेट की तो कमी है ही नहीं तुम। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो तुम वो जो 3 4 डेटा सेट होते हैं, टाइटैनिक डेटा सेट हो गया हमारा, है ना, नॉर्मल वाले होते हैं, उससे बाहर निकलो, थोड़ा रियल वर्ल्ड डेटा सेट पे काम करना स्टार्ट करो। अपने आप तुम्हें समझ में आएगा कि रियल वर्ल्ड में कैसे एमएल काम आ रहा है और कैसे इंप्लीमेंटेशन हो रही है ना। वही 4 बेसिक डेटा सेट करने लग जाओगे, यू विल गेट इनटू दैट बेसिक वाला लूप ओनली, और रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन बेसिकली नहीं हो पाएगी। सो दैट इज व्हाट आई फील। ओके। सो आई थिंक इससे ही काफी क्लैरिटी मिल जाती है कि इफ यू आर एक्चुअली अ गुड फिट फॉर एमएल और नॉट। इफ यू कैन वर्क विद रियल लाइफ डेटा सेट्स एंड अगर आपके अंदर पेशेंस है तो देन इट्स मोर देन इनफ अकॉर्डिंग टू यू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। सो लाइक एक चीज बहुत सही बोली आपने, ये ऑफ कोर्स हमारे पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन नहीं था बट अभी मेरे माइंड में क्रैक हुआ कि मैथ्स फॉर एमएल। मैंने आई गेस पहले भी एक बारी स्पेस में आपसे इसके बारे में बात की थी कि मैं मैथ्स कवर करना चाहता हूँ बट मेरे को क्लैरिटी नहीं मिलती कि मैं कहाँ से करूँ। कई लोग कहते हैं गिलबर्ट स्ट्रांग फॉलो कर, थ्री ब्लू वन ब्राउन फॉलो कर, कई कहते हैं कि तू प्रदीप गिरी से भी कर लेगा तेरा हो जाएगा। तो समझ ही नहीं आता कि क्या लेवल की मैथ्स और क्या मतलब कि एक तो होता है ना कि लेवल बंदे पे भी डिपेंड करता है, कैसे मैथ्स कवर करनी चाहिए फॉर एमएल अकॉर्डिंग टू यू। Yeah, so for this ना I was a bit lucky कि मैं 2 डिग्रीज कर रहा था, right? So I had हम्म। this one online degree as well which is based in data science, right? And by chance उसके फर्स्ट ईयर में I had this in the very first semester stats and maths, right? तो बाय चांस वाला आई वाज लर्निंग पाइथन आल्सो, मेरा स्टैट्स और मैथ ऑटोमेटिकली कवर हो गया। बाय चांस आई वाज वेरी लकी। तो मेरे काफी सारे इनिशियल कॉन्सेप्ट जो एमएल में आने वाले थे, लीनियर अलजेब्रा हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, है ना, वो सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे बाय डिफॉल्ट कवर हो गए थे, है ना। तो मुझे इतना जगल करना नहीं पड़ा पर्सनली, है ना। अब बाय द वे फॉर एनीवन वंडरिंग, वो सारे कोर्सेज जो बीएस डिग्री वाले हैं दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन आल्सो, राइट। यू कैन जस्ट गो आउट एंड सर्च इट ऑन यूट्यूब, यू विल गेट इट, राइट। प्रीटी गुड आल्सो, है ना। बट कहाँ से मैथ करे इसका तो यार मेरे पास पर्सनली इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज इसके बहुत से रिसोर्सेज हैं। और मतलब यार अगर जिसने 10th तक 11th 12th मैथ की होगी, मैथ के एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, कहीं से भी कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट तुम्हें, मैं तो ये भी नहीं बोलता कि तुम एमएल कर रहे हो तो तुम मैथ में क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ यार। तुम्हें बस वो हम्म। पता होना चाहिए क्या है ना। इफ यू नो व्हाट इट इज एंड यू फील दैट तुम एमएल में पढ़ रहे हो, तुमने एक कॉस्ट फंक्शन पढ़ा, लॉस फंक्शन पढ़ा, तुम्हें इंट्यूशन समझ आ गया उसका कि यहाँ पे क्या मैथ है, क्यों है, ठीक है, मूव अहेड, है ना। उस पर 100 क्वेश्चन करने की में भी जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस तुम्हें रिसर्च साइड जाना है। अगर तुम्हें रिसर्च साइड जाना है तो फिर मैथ ही मैथ करो, फिर तो मैं कुछ नहीं बोलूँ। फिर तो भाई मैथ पे पूरा इतना मैथ कर लो कि कोई कर ही नहीं सकता जी। इसमें ना अभी मैं एक रिसेंटली चीज कर रहा था, मैंने ना थ्री ब्लू वन ब्राउन से लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट की थी। अलॉन्ग विद दैट आई वाज स्टडीइंग फ्रॉम गिलबर्ट स्टाइन। तो थ्री ब्लू वन ब्राउन ने समझाया कि वो जो मैट्रिक्स होती है वो होता क्या है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी हो रहा है। लाइक लेट्स से कि कार्टेशियन प्लेन है, उसको 90 डिग्री रोटेट किया तो उसने रोटेशन को रिप्रेजेंट किया कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये क्लैरिटी मिली। वेक्टर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पता चलता है कि अगर हम वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कोई वेक्टर है उसको हम उसकी
उसकी फाइनल कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे आएंगे, वो होता है कि मैट्रिक्स को हमने एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, दो ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब सारे क्लैरिटी मिल गई। मैं कहा अब Fair मेरे enough. पास इतनी क्लैरिटी है ही है, गिलबर्ट स्टैंग से हम्म. पढ़ूंगा तो बस हो गया हम्म. लीनियर अलजेब्रा एमएल के लिए। मैं गिलबर्ट स्टैंग का पहला लेक्चर देखा, भाई ने बहुत सही समझाया, मतलब भाई क्या, हम्म. मतलब सर ने बहुत अच्छा हम्म. समझाया कि रो पिक्चर ही होता है, कॉलम पिक्चर ही होता है। सेकंड लेक्चर आया तो कहता है कि देखो अभी ना मैं तुम्हें एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा, एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा। मैं भाई क्या पढ़ा रहा है बंदा, ये तो मेरी क्लास टीचर ने भी पढ़ाया था, ये तो सेम सेम हो गया। I फिर get. उसने बोला कि नाउ वी नीड टू फाइंड अ मैट्रिक्स जिसको हम है ना हम्म. इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और वो हमें सेम इफेक्ट दे कि जो हमें पहले मिल रहा था कि एलिमिनेशन करने के लिए कि हमने -3 किया था सेकंड रो में से। मेरी तस्वीर फट गई, मैं कहा क्या पढ़ा रहा है ये बंदा। I get it. So इसका ना एक चीज है, like while learning ML also मैंने देखा है काफी लोग they straight away dive into Stanford courses, Andrew Ng courses, right? तो इसका मैं हमेशा बोलता हूँ that तुम अगर स्टार्टिंग में एकदम से थ्री ब्लू वन ब्राउन भी कूद जाओगे एकदम से, है ना, या फिर तुम स्टैनफोर्ड कोर्सेज पे कूद रहे हो, तुम्हें 50% ऑफ द शिट नहीं समझ आएगा, है ना, इट विल गो ओवर योर हेड, है ना, बिकॉज वो नॉर्मल ऑडियंस के लिए, हमारे जैसे ऑडियंस के लिए तो है ही नहीं नॉर्मल, इट इज वेरी डीप, है ना। उसके पहले आपको वो कोर्सेज करने के लिए आपको पहले कुछ और करना पड़ेगा टू बिल्ड अ बेस, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर तुम एमएलबी सीख रहे हो, है ना, जैसे मान लो तुम नॉर्मल एमएल कोर्स कर रहे हो स्टैनफोर्ड वाला, जैसे एनएलपी करो, चलो CS 2 to 4 से कर रहा है ना, तो इट्स वेरी सिंपल फैक्ट कि उसके पहले तुम कहीं और से एनएलपी थोड़ा पढ़ लो, जगल विद एनएलपी की ओरली वाली बुक पढ़ लो, है ना, कुछ पढ़ लो। या इवन एमएलबी स्टार्ट करो तो स्टार्ट विथ हॉमल, है ना, साथ में हॉमल में जो टॉपिक्स हैं वो तुम, चलो नाम लेता हूँ कैंपस का मान लो कोर्स है ना, मैं ये नहीं बोला पूरा कोर्स कर लो, है ना, बट दैट कोर्स इज नाइस फाइन, ठीक है, थोड़े बहुत इंट्यूशन मिल जाता है। एनपीटीएल पे बाला सर का कोर्स है ना, दैट इज वेरी इंट्यूटिव, मैंने वही किया था, दैट इज वेरी 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 इंट्यूटिव, है ना, उसमें इतने अच्छे समझा रखा है सर ने, मजा आता है एकदम, है ना। तो वो करोगे, फिर तुम स्टैनफोर्ड कोर्सेज पे जाओगे ना, एक अलग लेवल की क्लैरिटी मिलेगी तुम्हें, है ना, यू विल गेट टू नो थिंग्स मच बेटर, है ना। तो इसलिए कभी भी सीधा मैं तो बोलूंगा फॉरेन जो टॉप लेवल एजुकेटर्स हैं उन पर डायरेक्ट कभी मत जाओ, है ना, यू विल फेस लॉट ऑफ बैकलैश वहाँ पे, क्योंकि तुम्हें लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने पढ़ा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो क्या कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ा है ना। और एक और चीज, अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा है तो स्किप कर दो यार, इतना जरूरी नहीं है कि तुम्हें सब कुछ भेजे में घुसाना है ना, इट्स अबाउट गेटिंग इट राइट। तो हाँ, लेकिन अगर तुम ऐसे कॉम्प्लेक्स कोर्स कर रहे हो तो मेक श्योर यू डू अ प्रिलिमिनरी कोर्स टू दैट, फॉर श्योर। ओके, फॉर मैथमेटिक्स कोई प्रिलिमिनरी कोर्स है माइंड में? या मैथ्स का ना यार, इसके लिए मैं बोलूंगा, क्योंकि मैंने बीएस में कर लिया था, तो मेरे को मैथ्स में हाथ पैर की तो मारने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मैंने एमएल के बहुत कोर्सेज में हाथ पैर मारा है। मैंने एमएल के 5-7 कोर्स तो मैंने ऐसे ही किए हुए हैं, मतलब आधे आधे तो मैंने कर ही रखे हैं, है ना, और मल्टीपल टीचर से मल्टीपल टॉपिक्स अलग अलग जगह से पढ़ रखे हैं मैंने, है ना, ब्लॉग्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, रिसर्च पेपर तो मैं पढ़ते रहता हूँ, है ना, तो एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज है एमएल में। बट मैथ्स में आई वुड से कि मेरा बहुत रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्स था, एंड आई वाज ग्लैड कि मेरे को मैथ में तो हाथ पैर नहीं मारना पड़ा, इट वाज वेरी अर्ली ऑन। तो बाकी यार, अगर ऐसे एमएल में पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा वगैरह पढ़ना है, तो मैं तो बोलूंगा तुम पहले 11th 12th वाले अच्छे से कर लो, उसके बाद देन मूव अहेड। वो तो 11 12 ही तो नहीं करी थी, तभी तो आज इंटरव्यू ले रहे हैं। अरे यार, जी, कोई नहीं। थैंक्स टू जी। चलो वो सब तो चलता रहेगा, बट हाँ जैसे आपने बोला कि आपने बहुत सारे कोर्सेज पे जगल किया, तो आप भी उन लोगों में से हैं जो कि एक्स पे पोस्ट डालते हैं कि आप ये वाले कोर्सेज से पढ़ते यार मैं, हैं। पता है, मैं कोर्सेज जब मैंने, आई थिंक एक्स पे कुछ टाइम पहले मैंने जो जो कोर्स मैंने किए थे, चाहे उमैर जामिल के हो गए, है ना, या फिर थ्री ब्लू बेंडॉन के भी हो गए, है ना, एनपीटीएल वाले कोर्सेज हो गए, तो मैंने वो सारे जो जो किए थे मैंने एक टाइम पे पोस्ट कर दिए, है ना। बट ऐसे कुछ अकाउंट है जो डेली कुछ ना कुछ कोर्स पोस्ट करते रहते हैं, और फिर मैं हो जाता हूँ रेज बेट, क्योंकि मेरे को लगता है एक अकाउंट था, आई रिमेम्बर, मैंने उसको कॉल आउट भी किया था, छोड़ो ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, बट वो अकाउंट डेली कुछ ना कुछ एमएल रिसोर्स पुट आउट कर रहा था, हम्म। मेरे लिए रेज बेट था वो, क्योंकि इट वाज लाइक गूगल पे जा रहा है, तुम एक टॉपिक सर्च करो, जो रिसोर्स दिख रहा है, तुम लग रहा है ओ ये तो मैंने शेयर ही नहीं किया किसी के साथ, वो शेयर कर दो। तो दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क ना, कि तुम्हें, उसने कम से कम एन प्लेलिस्ट शेयर कर रखी है टू लर्न एमएल, है ना, एन नंबर ऑफ प्लेलिस्ट, और उनमें से आधी प्लेलिस्ट इतनी बकवास थी कि क्या बोलूं। तो दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क, अगर तुमने जनरली कुछ किया तो शेयर करो, या फिर तुम जनरली किसी चीज से सीखने वाले हो तो शेयर करो, सिंपल। ओके, सर लाइक अभी इतना पढ़ाई लिखाई की बात होगी है, तो एक फ्लो क्या होना चाहिए एमएल को सीखने का अकॉर्डिंग टू यू? एमएल का फ्लो यार, मैंने ये अपने एक आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, और आई थिंक मैंने ये पहले भी एक लंबा पोस्ट लिखा था, मेरा पहला वायरल पोस्ट भी गया था, आई थिंक एमएल रोड मैप वाला, हाँ 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 हाँ, है ना। है, वो याद तो है। रोड मैप उसके बाद मैंने किया नहीं कभी, बट हाँ। तो फॉर एमएल आई वुड से जस्ट स्टार्ट आउट विद पाइथन, वेरी बेसिक, पाइथन। है ना। पाइथन के अंदर नॉर्मल पाइथन करो, ऊप्स करो, सिंपल, है ना। उसके बाद गेट टू सम लाइब्रेरीज, numpy pandas बेसिक, है ना। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल डीप डाइव इनटू ईडीए। मैं एन नंबर ऑफ टाइम बोल चुका हूँ कि ईडीए तुम्हें रियलाइज नहीं होता एमएल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। तुम ईडीए कर लोगे, तुम्हारा 50% एमएल वहीं सॉल्व हो जाएगा। एक ईडीए क्या मॉडल, होता? ईडीएस बेसिकली एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, तो बेसिकली डेटा एनालिसिस है। तो बेसिकली मैं एक सिंपल फैक्ट देता हूँ, एक
डेटा सेट है तुम्हारे पास, है ना, विच इज वेरी डाइवर्टेड। उसमें अलग अलग कॉलम्स हैं, और कुछ क्लासिफिकेशन के कॉलम्स हैं, कुछ तुम्हारे नॉर्मल रैंडम वैल्यूज हैं, है ना। और बहुत ही, तो क्या पता स्क्यूड भी हो। स्क्यूड का मतलब क्या पता सारा डेटा एक राइट साइड की तरफ जा रहा हो ग्राफ तुम्हारा, है ना। तो बेसिकली ऐसा डेटा तुम जब मॉडल को दोगे नहीं सीख पाएगा वो, है ना, इट विल फक अप इन सिंपल टर्म्स, है ना। और वही अगर तुम ईडीए परफॉर्म करोगे, तुम डेटा के बारे में पता चलेगा, अरे ये तो राइट स्क्यूड डेटा है ना। तो मे बी मैं लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ, क्योंकि राइट स्क्यूड डेटा में जब तुम लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो इट बिकम्स अ लिटिल लीनियर फॉर द मॉडल टू अंडरस्टैंड इट, है ना। तुम लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। या फिर तुम बोल रहे हो कि अरे चलो यहाँ पे मैंने डेटा एनालाइज किया, है ना, इसके अंदर तो चार पांच ऐसे रो हैं जो काम के ही नहीं है, जिनमें वैल्यू सेम ही है, या फिर वैल्यू ज्यादा रिपीट हो रही है, रिडंडेंसी बहुत ज्यादा है, रिमूव दैट रो। क्यों तुम मॉडल को फीड कर रहे हो फालतू में, है ना। तो तुम ईडीए करोगे तो तुम्हें डेटा सेट के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, डेटा सेट के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। तो तुम डेटा सेट क्लीन करोगे और फिर मॉडल को दोगे, इट विल परफॉर्म मच बेटर, इट विल एबल टू फाइंड अ मच बेटर इक्वेशन अराउंड दो डेटा पॉइंट्स, है ना। तो दैट Okay. इज व्हाट ईडीए इज। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ईडीए करो, ईडीए के लिए मैटप्लॉटलिब होता है, सीबॉन लाइब्रेरी होती है पांडा में, नॉर्मल वो करो। स्टैट्स है, स्टैट्स इज लाइक, आई फील स्टैट्स काफी काम आता है, ची स्क्वायर वैल्यू हो गई, जेड स्कोर हो गया, कभी कभी काम आ जाता है ये सब भी, है ना। स्क्यूनेस कैलकुलेट करना, कर्टोसिस कैलकुलेट करना, है ना। तो ये सब पता होना चाहिए तुम्हें, ये सब ईडी के अंदर आना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट अ वेरी गुड हेफ्टी अमाउंट ऑफ नॉलेज और द डेटा सेट, है ना। बहुत लोगों को बोरिंग लगता है, मेरे को पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये चीज, है ना। आई लव डूइंग ईडीए, बहुत किया है मैंने ईडीए। और डेटा सेट के साथ खेलो, इसमें सिंपल है, डेटा सेट खेलो यार, तुम्हें डेटा सेट उठा लो, उसके साथ खेलते रहो। वियर्ड वियर्ड डेटा सेट उठाओ, एकदम वियर्ड, है ना, जिनका कोई सेंस भी नहीं बनता, उस पर उसका ईडीए करने बैठ जाओ। सिंपल Hmm. दैट्स इट, है ना। और ईडीए करो तो मजा आएगा। डेटा सेट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, कई बार कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है विच इज वेरी वैल्यूएबल, जो तुम्हें शायद देखी भी नहीं होगी, है ना। कई बार तुम्हें ऑटो को रिलेशन मिल जाता है कि अरे इन दोनों कॉलम्स के बीच में रिलेशन है, तुम्हें देख के पता नहीं चलता। तुम ईडी करना स्टार्ट करते हो, तुम्हें पता लगता है अरे इन दोनों की रोज के बीच, कॉलम्स के बीच में तो बहुत ही हाई कोरिलेशन है। दैट मीन्स उनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है तुम्हें, है ना। तो ये सब होता है थोड़ा ईडीए के अंदर। एंड देन वंस यू डू ईडीए, देन मूव फॉरवर्ड विथ आई वुड से बेसिक एमएल क्लासिफिकेशन रिग्रेशन अपना वही, है ना। एंड देन सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, बेसिक बेसिक। एंड देन वंस यू डू दैट, बेसिक एल्गोस अपना हो गया, लीनियर रिग्रेशन हो गया, देन बूस्टिंग एल्गोरिथम्स, बूस्टिंग बैगिंग वगैरह हो गया। ये सब कर लिया तो बेसिक एमएल बेसिकली तुमने कर लिया, है ना। बेसिक एमएल कर लिया विद बेसिक मैथ्स कर लिया, है ना। और ये करने के बाद देन यू मूव डाउन टू डीएल। हम्म। Okay. और हाँ, So now we will come to DL later on. So अभी एक चीज है कि लाइक आपने ऑलरेडी बहुत सारी टिप्स दे दी है कि EDA इज वन ऑफ द समथिंग की आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने भी खुद बहुत पर्सनली किया। उसके अलावा कोई ऐसी टिप्स या हैक्स जिससे लोगों को कोई और हेल्प हो सकती है इन द फील्ड ऑफ एमएल अकॉर्डिंग टू यू? कैगल करो, कैगल, एमएल हैक्स में, ओके। एमएल हैक्स में पार्टिसिपेट करो। एमएल हैक्स से सारी चीजें मैंने एमएल स्टार्ट कैसे किया था मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे एक हैकाथॉन था। आई थॉट इट्स अ नॉर्मल हैकाथॉन, तो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। बाई चांस मैं फाइनल, उसमें 3 राउंड थे, तो मैंने 2 राउंड क्लियर किए, बिकॉज 2 राउंड एमसीक्यू राउंड थे। मैं फिनाल राउंड में पहुंचा, और मैं बैठा हूँ फिनाल राउंड में, इट वाज ऑनलाइन वाली है, फिनाल राउंड में बैठा हूँ, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट एमएल की थी। मुझे पता भी नहीं था ये एमएल है। मुझे इतना पता था कि वहाँ डेटा सेट मिला हुआ है, और वही मलयालम में डेटा सेट था, है ना। दैट वाज मलयालम? हाँ, मतलब वो एनएलपी टास्क था बेसिकली एक, है ना। तो तुम्हें उसमें मॉडल ट्रेन करना था, है ना। तो मुझे नहीं पता था ये एमएल होता क्या है, उस समय मुझे आइडिया ही नहीं था, है ना। तो उस समय मुझे पता चला ये एमएल होता है। बट उस हैकाथॉन में मैंने क्या किया, डेटा सेट था, मेरे को ईडी आता था, ईडी मैंने कर रखा था बाई चांस, क्योंकि मेरा डेटा मेरा ऐसा था कि मैं एटलीस्ट एक डेटा एनालिटिक्स वाला जो जॉब होती है ना, कि मैं वो पहले सिक्योर कर लूँ, मेरा हमेशा से था ये। तो मैंने डेटा एनालिटिक्स पहले से कर रखा था, तो ईडीए ऑल्सो ए क्वाइट न्यू। तो जो भी था, तो डेटा सेट का मैंने डेटा एनालिस्ट कर दिया, और मैंने सबमिट कर दिया हैकाथॉन फिनाले राउंड में। उसके बाद मेरे को पता चला कि अरे ये तो एमएल राउंड था, इसमें एमएल ऐसे होती है, और मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा बाई चांस। तो आई स्टार्टेड डूइंग, वही सेम हैकाथॉन हुआ 4 महीने बाद, है ना। और 4 महीने बाद हुआ, और फिर से फाइनल राउंड पहुंचा, इस बार एमएल राउंड था, है ना। एमएल राउंड हुआ फाइनले में, आई गॉट वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स विद द बेस्ट कोर्स। फाइनल राउंड ऑफलाइन हुआ, ठीक है। ऑफलाइन में गया, उन्होंने टाइम दिया डिप्लॉय द मॉडल। अब मैं डिप्लॉय नहीं जानता, ठीक है, क्योंकि मैंने एमएल तो कर ली थी, पर मेरे को डिप्लॉयमेंट नहीं आती थी। इस हैकाथॉन के बाद मैंने डिप्लॉयमेंट सीखा, है ना। फिर उसके बाद इस साल के एंड में फिर से हैकाथॉन हुआ, मैं जीता, ये सेम हैकाथॉन में जीता, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो मैंने और बीच में मैंने और भी बहुत सारे एमएल हैक्स में पार्टिसिपेट किया, ऑनलाइन हो गए, ऑफलाइन हो गए। तो एमएल हैक्स में जब तुम पार्टिसिपेट करोगे, तुम्हारे पास नए डेटा सेट आएंगे, कॉम्पिटेटिव स्कोरिंग होगी, है ना। वहाँ पे यू एम टू गेट द बेस्ट स्कोर आउट ऑफ एन नंबर ऑफ गाइज। नॉर्मली क्या होता है, मेरे को एमएल हैक्स और नॉर्मल हैक्स में जो डिफरेंस लगता है, इन नॉर्मल हैकाथॉन अ लॉट ऑफ द थिंग्स डिपेंड्स ऑन द जज। जज कैसे तुम्हें देख रहा है तुम्हारे प्रोजेक्ट को, है ना, उन्हें क्या लग रहा है, जो तुम्हारे थीम्स हैं वो कैसे हैं, है ना। बट इन एमएल हैक्स जस्ट अबाउट गेटिंग द बेस्ट स्कोर,
एंड मेकिंग द परफेक्ट मॉडल, है ना। तो यप, एमएल हैक से पार्टिसिपेट करो, इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। Okay. So we already got a lot of knowledge and information जो कि हमें पहले एमएल के बारे में मेरे को तो पर्सनली नहीं पता थी. So what was your transition from ML to a DL engineer? एमएल टू अ डीएल इंजीनियर, ओके। सो जब मैंने एमएल किया था, तो आई देन आई स्टार्टेड विद एनएलपी, ठीक है। उसके बाद एनएलपी कम्स अंडर डीएल ओनली, है ना, क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह पढ़ना पड़ता है ना। आई डिड एनएलपी फॉर अराउंड 3-4 months। देन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे को एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट मिला, जो कि कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट था, है ना। इट वाज अ कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट, तो मेरे को लगा इट्स टाइम नाउ आई शुड स्टार्ट डूइंग कंप्यूटर विजन एज वेल। तो मैंने कंप्यूटर विजन किया फिर अराउंड बाय चांस व्हेन आई डिड अ कंप्यूटर विजन। तो मेरे 3 महीने कंप्यूटर विजन करने के बाद ही आई गॉट माय फर्स्ट फ्रीलांस गिग इन सीवी। बहुत सिंपल सा था, फॉर अ वेरी चंद अमाउंट ऑफ मनी, बोलूंगा भी नहीं, है ना। तो आई गॉट दैट गिग, आई डिड दैट। और बाय चांस उसके बाद मेरे को 2 और गिग्स मिले। एंड मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट भी किया था कि आई थिंक वो 2 जो प्रोजेक्ट्स थे मेरे कंप्यूटर विजन के, दैट वन ऑफ माय बेस्ट प्रोजेक्ट्स एवर। बहुत बढ़िया गिग थे, मेरे को उसमें सीखने में भी बहुत कुछ मिला, है ना। तो डीएल इंजीनियर तो मैं कभी नहीं बना था, मैं इसमें सीवी फ्रीलांसर जरूर बन गया था अराउंड फॉर 6 months, है ना। आई डिड अराउंड 3-4 फ्रीलांस सीवी प्रोजेक्ट्स, है ना। तो ये मैंने किया था। बट फ्रॉम एमएल टू डीएल इंजीनियर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, डीएल इंजीनियर कुछ नहीं होता आई वुड से। उसके अंदर अलग अलग डोमेन्स होते हैं, यू हैव टू फाइंड योर नीश और योर डोमेन। मेरे को एनएलपी बहुत अच्छी लगती थी, बट बाय चांस एनएलपी में शायद उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है ओपनली, आई वुड से कि बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है एमएलपी में कंपेयर टू सीवी हो गया। या फिर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुझसे पूछेगी तो टाइम सीरीज में है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी टाइम सीरीज में। यू कैन इजिली गेट अ जॉब आउट ऑफ टाइम सीरीज। बेंगलुरु में एन ऑफ कंपनीज हैं जो वर्क कर रही है टाइम सीरीज पे, है ना। और नॉर्मल जो एप्स बन रहे हैं उसमें भी टाइम सीरीज का यूज हो रहा है, फोरकास्टिंग का यूज हो रहा है। तो टाइम सीरीज है वेरी बूमिंग फील्ड, वहां पे जा सकते हो फॉर श्योर। या तो ऐसा कोई ट्रांजिशन नहीं था, इट वाज जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि मैंने एमएल कर लिया है तो अगला तो डीएल ही आ रहा है, तो ये अब कर ही लेते हैं। तो मेरा Uh, सिंपल था, एनएलपी था, सीवी था। देन उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम सीरीज किया, बीच में आरएल भी किया था। यप, दैट वाज द पाथ। okay. So like do you feel like कि DL करने से जो आपके ML के स्किल्स है वो भी enhance होते हैं? डीएल करने से एमएल के कुछ Firstly, कॉन्सेप्ट्स let's डीएल let's में। say कि what is DL if you have to explain what is DL according to you. लेमन लैंग्वेज में डीएल यार, देखो एमएल हमने सिंपल है कि हम मॉडल को समझा रहे हैं, है समझा ना। रहे हैं डीएल वो ट्रेन मतलब हो रहा है. इसको, डीएल मतलब उसको आधी से पहले से पता है। तुम एक अच्छा. ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो, बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे हो। तो बेसिकली डीएल इज व्हाट, कि हाउ अ ह्यूमन वुड प्रोबेबली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बिकॉज हम उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे हैं, राइट। तो इन लेमन लैंग्वेज तुम समझते हो डीएल की हाउ अ ह्यूमन वुड अप्रोच अ सर्टेन प्रॉब्लम। उसके बाद पहले से एक सर्टेन इन्फो होगा, एक सर्टेन ग्रास्प होगा, है ना। और उसके अंदर लेयर्स होंगी। एमएल में यू जस्ट बिल्ड अ सिंगल ग्राफ, उसके अंदर यू बिल्ड अ लेयर, है ना। और अलग अलग लेयर्स में तुम सीखते हो चीजें, है ना। तो दैट इज व्हाट डीएल, आई कैन डिफाइन द सिंपलेस्ट टर्म, शायद कोई गाइड ना दे, हाँ ठीक है, इसमें दैट इज व्हाट आई कैन डिफाइन द सिंपलेस्ट टर्म डीएल। हाँ तो, और डीएल आई फील एमएल के कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे डीएल में, तुम डीएल छोड़ भी सकते हो। मैं वन ऑफ माय फ्रेंड्स एक्चुअली उसने सिर्फ एमएल किया था, उसके भी ईडी अच्छा था, उसने स्टार्ट किया एमएल किया, ही गॉट अ जॉब एट समवेयर अराउंड 30-40 के। देन अभी ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एट अराउंड 8-10 एलपीए जस्ट बाय डूइंग एमएल, नो डीएल बाय द वे, है ना। क्लासिकल एमएल, क्योंकि उसने जो कंपनी ढूंढी, दैट कंपनी बाय चांस वो जस्ट डूइंग क्लासिकल एमएल। एंड बाय द वे मोस्ट ऑफ द कंपनीज राइट नाउ अगर एमएल कर भी रही हैं तो क्लासिकल एमएल कर रही है, दे आर नॉट इनटू डीएल वेरी मच, क्योंकि डीएल इज वेरी कॉस्टली, Okay. बहुत सारे कंप्यूटर वेस्ट होता है तुम्हारा। तो बाहर की काफी सारी कंपनीज डीएल कर रही हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रही हैं, है ना। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि नया आर्किटेक्चर ही बनाने में लग गया है, फिर बहुत ज्यादा अपना खुद का मॉडल ट्रेन करने में बैठ गया है ना। दैट इज नॉट द थिंग। और ना ही डीएल एक बहुत लार्ज स्केल पे यूज हो रहा है, आई वुड से। एमएल आपको बहुत जगह छोटी छोटी जगह पे मिल जाएगा, है ना। तो आपको क्लासिकल एमएल के रोल्स भले ही लो पेइंग हो, बहुत जगह मिल जाएंगे, बट डीएल के लो पेइंग रोल्स बहुत कम जगह मिलते हैं, है ना। तो यू कैन इजिली गेट, आई वुड से सबसे इजी टू पेव इन वे होता है डीएल के अंदर कंप्यूटर विजन ओनली, है ना। कंप्यूटर विजन में आपको इजिली मिल सकता है आराम से गुड जॉब, है ना। एंड देन यू कैन ऑल्सो गेट इन टाइम सीरीज जो मैंने बोला, बट यप, सो दैट इज द थिंग। मतलब अगर इस पूरी स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव स्टेटमेंट निकालनी हो तो यही है कि अगर कोई बंदा डीए कर रहा है तो उसकी पे चेक्स ज्यादा हो सकते हैं कंपेयर टू अ बेसिक एमएल इंजीनियर. डीएल ऑब्वियसली एंड मोर 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 देन दैट, आई फील लाइक जब तुम एआई पढ़ोगे तो तुम्हें एमएल उतनी हेल्प नहीं आती, डीएल हेल्प आती है, बिकॉज डीएल में ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर है। एलएम क्या है, एलएम ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर भी तो बेस्ड है। हम्म. तो जो वो बंदे हैं जिन्होंने सिर्फ एआई कर रखा है, उन्हें ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर ही नहीं पता। ठीक है, तुम एलएम से कर रहे हो, एपीआई कॉल करवा रहे हो, उसके अंदर क्या चल रहा है एक बार जानने की कोशिश तो करो, है ना। हम्म. फॉर दैट यू हैव टू लर्न डीएल, वेरी सिंपल फैक्ट, है ना।
Okay. तो टीएल इज नेसेसरी, आई वुड से कि अब कल को तुम एलएम कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि टोकन्स कैसे जा रहे हैं, टोकन्स अटेंशन लेवल पे कैसे काम कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा फिर वही है, थोड़ा टफ है तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हें पता होगा तो तुम बहुत इजीली ग्रास्प करोगे, मे बी तुम्हारा एआई में इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, है ना। दैट इज द थिंग। और मेरे ख्याल से तुम्हें अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो ही मूव फॉरवर्ड करो, इवन इन एमएल, है ना। मेरा बाई चांस इंटरेस्ट मैच कर गया तो मैं मूव फॉरवर्ड कर गया। मेरा डीएसए में 1 घंटा इंटरेस्ट मैच किया था, बिल्कुल करने का मन नहीं करता था, हालांकि 2-3 महीने ग्राइंड किया मैंने, पर नहीं मन किया, छोड़ो भाई, लीव इट। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिसर्च पेपर पढ़ो, 100 बार बोल चुका हूँ, रिसर्च पेपर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रिसर्च पेपर पढ़ो। मेरी रीडिंग स्किल बहुत खराब है, बहुत ज्यादा, मतलब यार बहुत आज के ज्यादा। टाइम पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था रिसर्च पेपर कैसे पढ़ना है इस पे, है ना, लोग जाके देख सकते हैं, शेमलेस प्लगइन, ओके, ठीक है। हाँ। तो उसके अंदर आज की डेट में रिसर्च पेपर पढ़ना इज वेरी इजी। ओके। तुम्हारे पास नोटबुक एलएम है, तुम्हारे पास अल्फा आर्काइव है, तुम्हारे पास एक कंपनी है, उसने कुछ टाइम पहले स्पॉन्सर किया था, बट आई वुड जस्ट टेक द नेम, राइटर्स करके है ना। शॉर्ट आउट टू शोगन मानस, है ना, दे आर बिल्डिंग अ वेरी गुड प्रोडक्ट, है ना। वो हो गई, फिर और भी ऐसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है यार, माइंड मैप हो गया। तुम अलग अलग जगह से ना रिसर्च वगैरह में कंटेंट निकाल सकते हो, पढ़ना बहुत ईजी है, जस्ट स्टार्ट आउट, है ना। मेरा बहुत सिंपल फंडा रिसर्च पढ़ने का कि मैं ऐसे नहीं, अरे मेरे को पेपर दिख गया पढ़ लिया मैंने। मैं भी पहले नोटबुक कलम पर डालता हूँ, अल्फा कैप पे डालता हूँ, एक समरी लेता हूँ पेपर की, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा ओके। तो आई मूव। और जैसे मैंने भी रिसेंटली जो पेपर पढ़ा था एमएसए वाला, है ना, हम्म। तो मेमोरी स्पार्स टेंशन वाला, तो आई सॉ दैट, तो मेरे को लगा कुछ तो अच्छा लग रहा है टाइटल से, मेमोरी स्पार्स टेंशन के बारे में कुछ तो अच्छा लग रहा, तो आई रेड द एब्स्ट्रैक्ट, देन आई गिव इट टू नोटबुक एलएम, उसने मेरे को ब्रीफ दिया, इट इज समथिंग अबाउट गेटिंग द मेमोरी रिट्रीवल एट अटेंशन लेवल। तो मेरी फट गई थोड़ी, क्योंकि जब तुम्हें अटेंशन के बारे में पता होगा, जब तुम्हें पता होगा टोकन्स कैसे काम करते हैं पहले से, तो ये चीजें तुम्हें एक्साइट करेंगी, फिर ये नई नई चीजें, है ना। रिसर्च पेपर तुम्हें तब एक्साइट करेगा जब तुम्हें पहले से एक सर्टेन नॉलेज है, और तुम्हें कुछ नया मिल गया जो तुमने शायद नहीं पढ़ा होगा, या कुछ नया रिलीज हो गया, कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, तो तुम थोड़ा वो हो जाओगे, अरे दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी, तुम एक्साइट हो जाओगे, है ना। तो इंस्टेंटली फिर मैंने पेपर पढ़ा, उसके अराउंड इंट्यूशन डेवलप किया। तो एक इंट्यूशन डेवलप करना जरूरी है, हर पेपर के थ्रू एक इंट्यूशन डेवलप करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि उस पेपर का तुम्हारे पास एक कंक्लूजन होना चाहिए, in not the most layman term but in the term that is used in your daily life। ओके। डेली लाइफ में एन नंबर ऑफ चीज कर रहे हो, किसी ऐसी चीज से रिलेट करो जो तुम डेली लाइफ में करते हो या कर चुके हो, है ना। जैसे एमएसए का जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले जो मैंने पोस्ट लिखा था, उसमें बहुत सिंपल सा इंट्यूशन था, है ना, कि मैं एग्जाम देता हूँ हर बार एंड है ना। मेरे कॉलेज में एक सिंपल सा है कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया होगा जिस टॉपिक से, उस टॉपिक से अगले साल नहीं आता है, अच्छा। ठीक है ना। तो मैं उसको पहले ही हटा देता हूँ, टॉपिक्स को पढ़ता ही नहीं, अगर ठीक आ है गया। ना। आ गया तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डीप डाइव नहीं करता, ऊपर ऊपर से तो पढ़ ही लेता हूँ, है ना, बट हाँ। 90% चांस है कि नहीं आता है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी नहीं होती है वो टॉपिक्स पढ़ना एग्जाम के लिए, है ना। तो मैंने उनको पहले एलिमिनेट कर दिया, यही है एमएसए बेसिकली, है ना। तुम मेमोरी को अटेंशन लेवल पे देख रहे हो, तो बेसिकली अटेंशन लेवल पे ही तुम मेमोरी की रिट्रीवल कर रहे हो, है ना। तो हम्म। दैट इज वही, तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैं ये वाले टोकन से पहले ही हटा दूंगा और मैं ये रखूंगा। तो जस्ट अ वेरी स्मॉल इंट्यूशन अराउंड माई डेली वर्ल्ड, है ना, ऐसी इंट्यूशन निकालो भाई अपने डेली वर्ल्ड के अराउंड, हेल्प्स यू हम्म। मच बेटर। ओके। हमने आई गेस इस पॉड अगर पूरी पॉडकास्ट में सबसे ज्यादा कोई वर्ड यूज किया है वो इंट्यूशन। सो व्हाट इज इंट्यूशन इन योर वर्ड्स? इतनी बार यूज करा है, बट इंट्यूशन है क्या, और एमएल में उसका रोल क्या है? इंट्यूशन होता है बेसिकली, इंट्यूशन नॉर्मली क्या होता है कि तुम्हें किसी स्केयर में क्या फील हो रहा है ना, कि तुम्हें क्या लग रहा है क्या हो सकता है, दैट इज इंट्यूशन, है ना, कि तुम्हारा अंदर की फीलिंग क्या कहती है ना, इन हम्म। लेमन लैंग्वेज। तो एमएल के अंदर है कि तुम अपने आप से कैसे उसको समझ सकते हो। देखो, तुम्हें कोई टॉपिक और तरह से समझाएगा, है ना, इंट्यूशन वो होता है कि तुम उसको कैसे समझना चाह रहे हो, तुम उसके अराउंड एक क्या, एक अपनी खुद की थ्योरी या इमेज। क्या है, एक खुद का इमेज डेवलप करो, एग्जैक्टली exactly, है ना। कि अगर मैंने एमएल पढ़ लिया, चलो मैंने लीनियर रिग्रेशन ही पढ़ लिया, उसमें इतनी बड़ी इंट्यूशन नहीं है, बट जब तुम नया नया पढ़ो, एक इंट्यूशन डेवलप कर लो ना लीनियर रिग्रेशन में, कि अरे चलो कुछ नहीं हो रहा है, कि मैं एक रैंडम प्राइसेस रेट कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, तो मैं घर खरीदने जाऊंगा कल, तो मैं 10 घर मिलेंगे मेरे को, सबके अलग अलग प्राइस होंगे, मैं ऑर्डर को दे दूंगा, बोलूंगा चलो 5 साल बाद इसका कितना प्राइस है, लीनियर हम्म। रिग्रेशन हो गया, सिंपल इंट्यूशन, है ना। ओके। दैट इज व्हाट इट इज, है ना। So, like, my next question to you is that we have talked about research paper. So, one research paper, and पहले तो of course मैं पहले तो सारे tweets highlight कर दूंगा, पहले रोड मैप वाला और रिसर्च पेपर रीड करने वाला जो आर्टिकल वगैरह वो सब नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बट हाउ समवन शुड स्टार्ट रीडिंग रिसर्च पेपर? क्या वो एक ऐसी हैबिट होनी चाहिए रिसर्च पेपर रीड करते टाइम, जो कि ऑफ कोर्स आपने बता ही दिए कि समराइज करके पहले थोड़ा आइडिया होना चाहिए फिर मजा आएगा। एंड हम्म। व्हाट इज वन बिगिनर फ्रेंडली रिसर्च पेपर जिससे अगर लोग स्टार्ट करेंगे तो उनको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी और थोड़ा अच्छा लगेगा, कि ऐसा नहीं होगा कि वो भाग जाएंगे कि रिसर्च पेपर पढ़ना ही नहीं चाहता कभी। अ, एक ब्रिंगर फ्रेंडली रिसर्च पेपर आई वुड से, आई थिंक 2022 का था पेपर, विच वाज बेसिकली बेंचमार्किंग ऑल द मॉडल्स। ओके। बहुत सिंपल पेपर है, सारे मॉडल्स को बेंचमार्क कर रहा था, है ना, रीड दैट, अगर बेंचमार्किंग तो पढ़ो,
आधे लोगों को हम्म बेंचमार्किंग ही नहीं पता होती मॉडल्स की, है ना। तो बहुत सिंपल भी बता, जस्ट अ समरी काइंड ऑफ इवैल्यूएशन काइंड ऑफ पेपर, है ना। बेंचमार्किंग कर रहा है वो, पढ़ो रिसर्च पेपर वो, है ना। बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं है उस पेपर में, मैं तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें नॉर्मल तुम्हें आर्टिकल ही मिल जाएगा, बट फॉर द सेक ऑफ इट वो पेपर है तो पढ़ो, है ना। और पेपर में एक और चीज होती है कि मैंने उस आर्टिकल में ऐसे लिखा हुआ है कि पेपर दो तीन टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है थ्योरी इंटेंसिव, है ना। एक होता है मैथ इंटेंसिव। एक होता है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंसिव, है ना। तुम फिगर आउट करो कि तुम किस में फंसते हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पर्सनली ज्यादा मैथ इंटेंसिव पेपर में इंटरेस्टेड रखता है ना, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं क्यों उतना दिमाग खराब करूँ, मेरे को बस समझना है कि ये है क्या। मेरे को इतना नहीं समझना इसकी वजह से किसने कितनी मैथ लगा दी, उसने 4 महीने मैथ लगाई होगी वो, मेरे को उतना नहीं जानना। मेरे को बस समझना है कि इसने मैथ लगाई, क्या लगाई है, ठीक है, क्या करना चाहे, ठीक है, आई गॉट दैट, आई गॉट दैट, है ना, डन एंड डस्टेड, है ना। तो मैं मैथ्स वाले पेपर्स में जनरली, अगर मेरे को मैथ ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है, आई ट्राई टू स्किप इट, है ना। इफ आई ट्राई टू जस्ट गेट अ वेरी स्मॉल इन्फो अबाउट इट, है ना। मैं थ्योरी पे ज्यादा फोकस करता हूँ, इंट्यूशन पे ज्यादा फोकस करता हूँ मैं। बेसिकली आई ट्राई टू गेट द जिस्ट ऑफ द पेपर, कि पेपर में जो टाइटल है या पेपर का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो एक्चुअली जस्टिफाइड है कि नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन पेपर है, इम्प्लीमेंटेशन में भी दो तीन टाइप होते हैं कि बहुत ही हैवी इंप्लीमेंटेशन करा रखी है कि वी नीड अ जीपीयू टू इम्प्लीमेंट, तो रहने दो, है हम्म ना। अगर सिंपल इंप्लीमेंटेशन है तो करो, है ना। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले अभी जो लेटेस्ट आर्टिकल लिखा था एक्सक्लूसिव सेल्फ अटेंशन पे, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी है, छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन है। एक कोई भी जीपीटी स्टाइल आर्किटेक्चर का पेपर ले लो, है ना, उसका मॉडल बनाओ, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट उस पर एक्सक्लूसिव सेल्फ अटेंशन लगा दो। कुछ नहीं, एक्सक्लूसिव अटेंशन तुम्हारा जो पिछला टोकन है वो देखता नहीं है, 2 लाइन का कोड होगा मैक्सिमम, है ना। छोटा सा ओके इंप्लीमेंटेशन है, रन दैट, गेट द रिजल्ट, है ना। मैंने रिजल्ट चेक किए, जैसा उस पेपर में था वैसे ही आया, आई वाज सेटिस्फाइड, मेरा इंप्लीमेंटेशन भी हो गया, इजी। ओके। अभी जो आपने पहले बोला कि बेंचमार्क, वो वाला जो रिसर्च पेपर है, बट उसके भी प्री रिक्विजिट्स होंगे ना कि पहले हमें पाइथन लाइब्रेरीज ईडीए ये सब आता होना चाहिए क्या तभी हम डाइव कर सकते हैं। वो बहुत बेसिक पेपर है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक पेपर्स एवर। उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें बस ये है कि ये मॉडल आ रखे हैं अभी करेंटली, है ना। ये मॉडल है और वो ऐसा ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, है अच्छा। ना, और सबका कंपैरिजन है। नॉर्मल, अब तो खैर, अब तो तुम्हें जनरली पता होता है, एक्सपेंड नंबर ऑफ पोस्ट मिल जाएंगे, है ना। उस समय थोड़ा टफ था, है ना। तो ये पेपर बहुत सिंपल है, अगर तुम्हें जस्ट एक गो टू गो रीड पेपर पढ़ना है, मे बी ये पढ़ लो, है ना। बहुत सिंपल इन्फो होगा, है ना। लेकिन अगर एमएल स्टार्ट करना है तो परसेप्ट्रॉन वाला पेपर है, टेक योर टाइम, रीड दैट परसेप्ट्रॉन वाला पेपर, है ना। उसके बाद अटेंशन इज ऑल यू नीड है। मैं बोलता हूँ बहुत सारे लोग सीधा एमएल में अटेंशन इज ऑल यू नीड से स्टार्ट कर देते हैं, नहीं मत करो हम्म यार, थोड़ा जनरल पेपर्स पढ़ लो। डिग्रेशन क्लासिफिकेशन पे भी बहुत जनरल पेपर्स हैं, बहुत सिंपल सिंपल पेपर्स हैं आई वुड से, है ना, रीड दैट। ग्रेडियंट डिसेंट पे पेपर्स होते हैं, है ना। ग्रेडियंट डिसेंट के पेपर्स पढ़ो, ग्रेडियंट डिसेंट के ऑप्टिमाइजेशंस पढ़ो अलग अलग, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर एक कोई तुम टॉपिक पढ़ोगे ना, तो तुम्हें उसके एन नंबर पेपर मिल जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन साइड, किसी ओके ने कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर रखा होगा, वो पढ़ो, है ना। वो पढ़ोगे तो तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन पता चलेगा उस पर्टिकुलर नीश टॉपिक का कहाँ यूज हो रहा है ना। ओके कि हेल्थ केयर, जैसे कुछ लोग हेल्थ केयर में इंटरेस्टेड है, इन हम्म एमएल इन हेल्थ केयर, है ना। मैंने पिछले वाला पॉडकास्ट देखा था, यू आर इंटरेस्टेड, है ना। सो हम्म हम्म अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हेल्थ केयर में यूज हो रहे हैं, है ना। जैसे कंप्यूटर विजन के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं कुछ, है ना। कुछ बहुत नीच लेवल टॉपिक्स यूज हो रहे हैं, तो जाओ थोड़ा उसके अराउंड एक्सप्लोर करो। तुमने कोई एक्स्ट्रा पढ़ा, चेक करो क्या वो हेल्थ केयर में यूज हो रहा है कहीं, नीच टॉपिक। ओके उसके अराउंड एक पेपर मिलेगा तुम्हें कि अरे एक्सरे में यूज हो रहा है, फिर इसमें यूज हो रहा है ना, तो चेक इट, हैव फन। ओके हैव फन। So now let's talk about something controversial, the importance of low language stuffs या low level stuffs in ML. ठीक है। कोई भी मेरे सामने बैठा होता ना, पहले चिढ़ जाता, पता नहीं क्यों, मेरे को भी समझ नहीं आया। Like what is the importance of C language, C++ language in the field of ML? यार ये वही वाला बात है कि तुम्हारे पास बिल्डिंग बनी हुई है, तुम फ्लैट में हम्म रह सकते हो। नहीं, तुम्हें पहले जमीन खरीदनी है, फिर तुम फ्लैट बनाओगे, फिर रहोगे, है ना। अच्छा। कुछ लोगों को जमीन खरीद के फ्लैट बना के रहने में मजा आता है, कुछ लोगों को बनी बनाए फ्लैट में रहने में मजा आता है। इट्स अप बेस्ट टू यू, एवर लाइन, बेस्ट एवर है लाइन। ना। बट रीजन क्या है, मतलब क्या है? अब जैसे कई लोग कहते हैं कि जो घर जमीन खरीद के बनाने में आता है तो उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, वो ज्यादा देर टिकता हाँ, है। तो इज इट ट्रू? अगर तुम्हें बहुत यार ऐसा ट्रू कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है मेरी बिल्डिंग में फ्लैट में रहो बिल्डिंग गिर जाएगी, है ना, ऐसा नहीं है, है ना। इट्स मोर लाइक कि तुम एक उस लेवल पे अभी हो, जब तुम निश्चित पे नहीं हो कि तुमने पाइथन यूज कर लिया, है ना, ठीक है, तुम पाइथन यूज कर लिया, अब तुम सी प्लस प्लस में, तुमने सी एम एल स्टार्ट कर दिया मान लो, है ना, या सी प्लस प्लस में कूड़ा लिखना स्टार्ट कर दिया, तुम कूड़ा कर रहे हो एकदम सी प्लस प्लस कर रहे हो, ठीक, मैंने भी कूड़ा स्टार्ट किया रिसेंटली अभी, है ना। तो मेरे को भी थोड़ा सी प्लस प्लस करना पड़ा उसके अंदर, है ना। तो अब मैं कर रहा हूँ तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि नया है मेरे लिए, थोड़ा कूड़ा भी, है ना, बट मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो लेटेस्ट एआई ट्रेंड्स चल रहे हैं या जो लेटेस्ट इंडस्ट्री डिमांड चल रही है उसके साथ रहोगे तो यू विल गेट पेड वेरी हाई, नहीं रहोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, है ना। हम्म आज की इंडस्ट्री में जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके साथ रहो, लर्न दैट एंड यू विल गो वेरी लॉन्ग वे। और तुम अगर वही 4 साल पुराने कॉन्सेप्ट में लटके हुए हो
तो शायद तुम भी फिर एक एवरेज, आई वोंट से एन एवरेज जॉब, बट जॉब दैट इज नॉट वेरी ड्रीमी काइंड ऑफ जॉब, उस पे रह जाओगे ना। तो और नीश से करने की बात है जहाँ तक अमल, तो यार करो, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो नीश अमल करता है, ही इज एंडिंग इन करोड़ राइट नाउ, है ना। तो ऐसा बात नहीं है, पैसा हर जगह है। और तुम्हें जो फैसिनेट कर रहा है वो करो यार। तुम्हें सी प्लस में लिखने में मजा आ रहा है तो करो ना, मैं सिंपल बोलता हूँ। इंटरेस्ट आ रहा है तो करो, है ना। मेरे को इंटरेस्ट उतना नहीं आता पर्सनली कि मैं एकदम कोड से लिखने बैठ जाऊँ, कोई मॉडल एकदम सी प्लस में सब कुछ सारे टेंसर सब कुछ डिफाइन करने लग जाऊँ, नहीं होता मेरे से, तो मैं नहीं करता, है ना, सिंपल है। टाइम भी ज्यादा कंज्यूम करेगा ऑब्वियसली। इसमें एक और चीज है, लाइक लेट्स से समबडी इज डूइंग सी एंड सी प्लस प्लस एंड उसमें सी प्लस प्लस में डीएसए कर रहा है, बहुत उसने अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई, बहुत अच्छा बेस बनाया, फिर वो पाइथन में जा रहा है या फिर वो एमएल पे जा रहा है, उसका कोई बेनिफिट होता है? लाइक लेट्स से कि ईडीए है, ईडीए में हम डाटा सेट्स के साथ खेलते हैं, तो डाटा सेट्स के साथ क्या मतलब, क्या सेंस क्या है कि क्वेश्चन की सेंस बनती है या क्या चीज क्या है? एक सेकंड, मतलब तू कह रहा है पहले डीएसए कर लिया, सब कर लिया, उसके बाद एमएल में गया? एक अच्छी टेक फाउंडेशन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कर सकता है बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता भाई। बट करना बढ़िया है तो। चाहिए। टाइम है तो कर लो, मेरे ख्याल से टाइम नहीं होगा इतना। अगर लेट्स तुम से कोई खाली फर्स्ट एमएल ईयर में, में। फर्स्ट ईयर में तो मैं बोलता हूँ तुम एक्सप्लोर करो, सब पढ़ लो भाई। डीएसए कर लो, पाइथन कर लो, सी प्लस प्लस कर लो, जावा भी कर लो, है ना, वेब डेव भी कर लो, तुम एमएल भी कर लो, सबका थोड़ा थोड़ा जिस्ट ले लो, सबका थोड़ा थोड़ा जिस्ट होना चाहिए तुम्हारे पास। और बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर तुम्हें क्लैरिटी होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। इनिशियली तुम्हें सबका फर्स्ट ईयर में सबका जिस्ट लेना पड़ेगा। जनरली लोग ये गलती करते हैं, फर्स्ट ईयर वेस्ट कर देते हैं, फिर सेकेंड ईयर में आते आते थोड़ा स्ट्रेस हो जाते हैं, फिर अरे चलो वेब डेव ही कर लेते हैं, चलो मंस्टैक ही कर लेते हैं, है ना। मैं बताता हूँ, मैंने एमएल किया था, मैंने एमएल करने के बाद बीच में जस्ट टू मेक सम प्रोजेक्ट मैंने मंस्टैक सीखा था, है ना, नोड वगैरह, है ना। तो मैंने खुद बाद में सीखा यार, वो जब मेरे को जरूरत पड़ी तो मैंने सीखा। सेम मैंने जब एमएल सीखा था तो मेरे को डिप्लॉयमेंट्स करने थे, तो मेरे को पता चला स्ट्रीमलेट नाम की चीज होती है ओके। ना। तो मैंने सबसे पहले स्ट्रीमलेट पे डिप्लॉयमेंट सीखा। 2 महीने बाद लगा कि ये तो मैं किसी को दिखा ही नहीं सकता, इतना गंदा यूआई है। हम्म। तो फिर मैंने आईटी मद्रास में जो बीएस वाला कोर्स है उसमें मैंने फ्लास्क वगैरह सीख रखा था, तो मैं बोला इसी के राउंड सीख लेते हैं कि मॉडल कैसे डिप्लॉय करूँ मैं फ्लास्क वाले आपके साथ, है ना। फ्लास्क और बेसिक एचटीएमएल जिंजर टेम्पलेट सीएसएस बूटस्ट्रैप के साथ इसको कैसे डिप्लॉय करेंगे। तो मेरे को पता चला एचएफ पे स्पेसेस होते हैं, ग्रेडियो स्पेसेस कहते हैं उन्हें, है ना। वहाँ पे जाके मॉडल डिप्लॉय करो, और स्पेस की सिंपल एक एपीआई होती है, उसको अपने एचटीएमएल पेज में डाल दो, एक एचटीएमएल पेज से ही तुम पूरा चला सकते हो यूआई, है ना। सो ओके। सिंपल, है ना। तो मेरे को पता चला, आई एक्सप्लोर, ठीक है, मजा आया, ठीक है। फिर मैंने उसके अराउंड, चलो फिर मैंने फ्लास्क के अराउंड हो गए, लॉगिन साइन वाले पेजेस के साथ पूरा एक एंड टू एंड प्रॉपर बना दिया, है ना, जिसमें मॉडल डिप्लॉयड था हगिंग फेस पे, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो तुम, मेरे ख्याल से विद टाइम जब डिमांड आ रही है तो सीखो, अगर तुम एमएल कर रहे हो तो, है ना। और फिर धीरे धीरे आई रिसेंटली, मैं कहूँगा मेरी बैकएंड उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, बट जब मैंने पिछली इंटर्न की, आई वाज ग्लैड द फाउंडर वाज सो गुड, आई लर्नड अ लॉट ऑफ बैकएंड ओवर देयर, है ना। और अभी तो मेरा खैर स्टैक ही चेंज हो गया, एआई इंजीनियर हूँ, तो इट्स क्रेजी चल रहा है अभी तो, पर छोड़ो। ओके। सो अभी थोड़ा चिल पार्ट पे आते हैं। तो चिल पार्ट पे आते सीधा पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा कि क्या एआई एमएल इंजीनियर पैसा कमा पा रहे हैं? भाई कमा पाए तो तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा कमा रहे हैं। नहीं, लाइक अगर कोई ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं, बट फिर भी क्या फिगर होगा? यार बहुत रैंडम फिगर है, मैं कहूँगा एमएल इंजीनियर्स तो, फिर भी यार कुछ कंपनीज हैं अच्छी एमएल में जो कोर लेवल बहुत अच्छा पे कर रही हैं, बहुत अच्छे, है ना। बट मैक्सिमम कंपनीज इंडिया में मिल जाएंगी या कहीं मिल जाएंगी, एकदम अगर बेसिक एमएल क्लासिकल मिल कर रही है, कुछ नीश एमएल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ना, तो दे वोंट पे यू मच। स्पेशली रिसर्च में तो पैसा है ही नहीं, खैर रिसर्च का तो छोड़ ही दो, अप्लाइड साइड में भी उतना नहीं है। बट हाँ, अगर तुम्हें एआई भी आता है साथ में, है ना, एंड यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम प्लस तुम्हें डेवलपमेंट आती है, तुम्हें डिप्लॉयमेंट भी आती है कि तुम्हें मल्टी यूजर पे कैसे हैंडल करना है, कुछ मॉडल वगैरह डिप्लॉय कैसे करना है, थोड़ा बहुत एमएल ऑप्स भी आता है, कुबरनेटीज वगैरह आता है, डॉकर वगैरह आता है। You can earn a very good amount of money. I would say very good. I mean very good. I mean very good. है ना. I know guys who are earning 7 digits a month. है ना. As an AI engineer, as an ML engineer. But हाँ, what I can see कि मैं भी और मेरे कुछ और दोस्त भी which were doing ML, very core ML. They all of us have somehow shifted to AI ML now. I would say AML है, ऐसा नहीं ML है, कोर लेवल पे ML ही है, बट अप्लाइड AI साइड ज्यादा है, तो we have to deal with a lot of AI stuff as well, है ना. एंड बाय एआई आई डू नॉट मीन जस्ट एपीआई कॉलिंग, बाय द वे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, इंजीनियर सिर्फ एपीआई कॉल नहीं करता भाई, थोड़ा दुनिया में आगे बढ़ो, मेमोरी की साइड जाओ, थोड़ा हार्नेस की साइड जाओ, थोड़ा आजकल एकदम बजवर्ड चल रहा है मेमोरी हार्नेस, थोड़ा डीप लेवल में जाओ, है ना। तो मैं भी अभी हार्नेस पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा पर्सनल बेंचमार्क आ रहा है हार्नेस का, मैं किसी दिन आर्टिकल डालूंगा, अभी काम कर रहा हूँ। तो या लेटेस्ट ट्रेंड्स को थोड़ा पढ़ो, दैट इज व्हाट आई। ओके, अभी हमने इतना, जैसे अभी आपने नॉर्मली आप बात करते तो आप बोलते हो कि पहले मैंने ये पढ़ा, फिर मैंने ये सीखा, फिर मैंने वहां से वो कर हम्म लिया।
तो ये चीज तो आपने एक सेंटेंस में खत्म कर दी, बट इस चीज को करने में कितना टाइम लगता है? लेट्स से कि कोई, अभी हमने बोला कि ये सब सीखना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, कि वो टाइमलाइन क्या है कि एक एमएल इंजीनियर कब एक एमएल इंजीनियर कहलाने लायक बन जाता इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कब कहलाने लग जाता है यार, ये तो मेरे को नहीं पता कब कहलाने लग जाएगा वो एमएल इंजीनियर। मेरे ख्याल से व्हेन ही विल केपेबल इनफ टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम। मैं जब सेकंड ईयर में था, जस्ट व्हेन माय फर्स्ट सेमेस्टर वाज अबाउट टू एंड, तो मेरा एक दोस्त है, वो उसी से फाउंडर से बातचीत चल रही थी। वो लाइक यार मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे को डेटा सेट में इश्यूज आ रहे हैं। मैं बोला यार इसको तो ऐसे से कर सकते हैं। तो वो कहेगा चल इंटर्न करेगा, है? ओ, ओके। ठीक है, और अनपेड। उसने बोला पैसे नहीं मिलेंगे बट तेरे को भी सीखने को मिल जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। मैं बोला चल ठीक है। मैं 2 महीने वहाँ काम किया। 2 महीने काम किया, थोड़ा डिप्लॉयमेंट भी सीखा मैंने वहाँ पे, है ना। प्लस मैंने थोड़ा, एक हेल्थ केयर में था कॉलेज में, है ना, हेल्थ केयर का ही था स्टार्टअप। 2 महीने सॉल्व किया बट समाज जमा नहीं, तो वो स्टार्टअप भी बाद में बंद हो गया था। प्लस फाउंडर भी उतना अच्छा नहीं था उसका। तो खैर ये बात बस बोलनी नहीं चाहिए मेरे को, बट ठीक है, कहीं देख लिया उसने तो। मतलब उस वो बहुत ही क्लमजी था आइडिया को लेके बाद में, विच आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, बट वो हाँ, द थिंग इज कि मैंने उस पर काम किया तो मेरे को ऐसा लगा ओ आई एम लिटिल बिट रेडी फॉर दिस, है ना। फिर जब मैंने सीवी किया तो मेरे को प्रोजेक्ट आया कोई, तो मैंने बोला अच्छा मेरे को प्रोजेक्ट मिला है, आई एम लिटिल रेडी फॉर दिस। फिर बीच में हमारे एक्सपेक्ट पुष्कर भाई करके, है ना, इज अ हम्म। वेरी गुड गाय। वो अभी खुद का स्टार्टअप चला रहे हैं, ही इज इनटू रेसिडेंसी बैंगलोर राइट नाउ। मैंने 2 महीने उनके साथ भी काम किया था, है ना, फॉर स्टार्टअप, जहाँ पे हम लोग कुछ सिंथेटिक डेटा ग्राउंड बना रहे थे। इनफैक्ट मैंने वहाँ पे 3-4 इंटरव्यू भी लिए थे एमएल के, है ना। तो इट वॉज वेरी फन। तो ये सारी चीजें होती है जब तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि हाँ तुम रेडी हो रहे हो चीजों के लिए, है ना। हम्म। अभी जब मैं इंटर्न कर रहा था कुछ टाइम पहले, तो आई रिमेम्बर मैं किसी से बात कर रहा था, आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट नाइट कि यार मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, है ना। लाइक आई एम ग्राइंडिंग माई एस ऑफ, और मेरे को बदले में ना उतना आउटपुट मिल नहीं रहा है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ, है ना, कि जो मेरे को शायद मिलना चाहिए, आई एम नॉट गेटिंग दैट। उसके 1 महीने बाद गॉट दिस यूरोप वाला स्टार्टअप जो भी थी, है ना। तो आई वाज हैप्पी अबाउट इट कि ठीक है, थिंग्स आर पेइंग ऑफ, है ना। और ऐसे ही होता है फ्यूचर में, तुम ग्राइंड करते रहो, थिंग्स विल पे ऑफ, है ना। और जब थिंग्स स्टार्ट टू पे ऑफ, देन यू कैन क्लेम दैट यू आर समवॉट एन एमएल इंजीनियर, यू आर समवॉट एन इंजीनियर। आई नो tons of ML engineers who are much better than me, who are doing much better than me, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आई एम द बेस्ट। मैं तो बोल रहा हूँ मैं खुद रोज कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, खुद कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। बहुत लोग हैं, मैं खुद दूसरों से सीखता रहता हूँ। अभी जगन्नाथ भाई हमारे एक्स पे, उनसे परसों कुछ बात हो रही थी, है ना। तो हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने मेरे को कुछ सिखाया, मैंने उसके ऊपर कुछ उन्हें एडवाइस दे दी कि चलो आप इसके ऊपर ये बिल्ड कर लो। बट उन्होंने मुझे कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखा दिया बातों बातों में, मैं भी सीखा, फिर बाद में एक्सप्लोर किया उसको। तो यू लर्न फ्रॉम ईच अदर। बाय द वे, दिस थिंग ओनली अप्लाइज व्हेन यू हैव फ्रेंड्स ऑन एक्स। तो ये रैंडमली करने जाओगे तो एक बंदे ने करा था, भार्गव लंस नाम था। आधा घंटा गालियां पड़ी थी, 4-5 फॉलोअर कम हुए थे और कुछ नहीं, और डीएम खोले ही नहीं थे, 1 घंटा नहीं खोले अरे यार, थे। चलता यार रहता एक्स है। पे आई वुड से एक्स इज अ वेरी गुड सर्कल। वहाँ पे यू कैन एक्चुअली मेड वेरी गुड फ्रेंड्स। आई एम ग्लैड, मेरा बहुत अच्छा सर्कल है यार एक्स पे। हाँ। और बाई चांस वो, पता है क्या, मैं एक्स पे बहुत टाइम से हूँ बट, और टेक पोस्टिंग ये बहुत टाइम से करा था। आई इनिशियली जॉइन टेक्स टू पोस्ट माई म्यूजिक स्टफ। हम्म। तो म्यूजिक अराउंड पोस्ट करता था, है ना। बट लेटर ऑन आई ट्रांजिशन टू पोस्ट अराउंड टेक स्टफ, जब मुझे लगने लगा यस आई एम केपेबल टू पोस्ट अराउंड टेक स्टफ, है ना। हाँ, तो आई फेब्रवरी स्टार्टेड टू 23 पोस्ट। में ज्वाइन किया था इन्होंने, मैंने अभी देखा, क्या यहाँ बात पर ही है, खोला देख ये था। सब मैं स्टॉक करके हाँ। बैठा हुआ, नेवर माइंड। तो हाँ। हाँ, तो मैंने बहुत पहले ज्वाइन किया था। बट ये वाला जो मेरा अभी करंट सर्कल है, नाम नहीं लूंगा लोगों का, दैट केम अराउंड लास्ट ईयर अगस्त के अराउंड ही बना था, है ना। अब बाई चांस हम सबकी सिनर्जी इतनी बढ़िया बैठ गई, है ना। और बाई चांस उस समय जब हम सबने सर्कल बना था, देन ऑल ऑफ अस वर नॉट अर्निंग वेरी गुड, है ना। आज की डेट में सब फोड़ रखा है सब में, बस सैलरी बताऊंगा सबकी फट जाएगी। फोड़ रखा है सब ने, है ना। तो क्रेजी हो रखा है। शाउट आउट टू ऑल ऑफ देम, मेरे को तो पता है कौन है। देन उसके बाद लाइक एक चीज है, डू यू फील लाइक कि आपने बोला एमएल इंजीनियर्स को पे मिलती है, अच्छी पे भी मिलती है, तो जितना उनका इन आर टर्म्स उनकी पिछवाड़ा उनका घिसा जाता है, या जितना उनसे काम करवाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग डू यू थिंक कि इट्स अ जस्टिफाइड पे, या वो अंडर पेड ही है अभी? रिसर्च में आई वुड से अंडरपेड है, ओके। हाईली हाईली अंडरपेड इन रिसर्च। एंड इन बाकी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट में, आपको इंडिया में क्या तो लगता यार है, अब आप तो अंडर मेरे को, पेड हो या क्या? या मैं अंडरपेड नहीं हूँ, आई एम वेल पेड। आई ओके। एम वेरी वेल पेड राइट नाउ, बट इंडिया में अंडरपेड तो है। इंडिया में तो बहुत अंडरपेड है, मतलब हाईली अंडरपेड है। मैं जो इंटरव्यू करा था, मतलब हो सकता है क्या पता वो देख ले, बट अमाउंट ऑफ मनी आई वाज गेटिंग वाज वेरी गुड। बट मेरा उस वाले इंटर्न में मोटिव ये था सीखना। तो आई नीडेड समवन एज अ मेंटर आल्सो विथ मी, और मैं वही ढूंढ रहा था उस टाइम इंटर्न में कि मैं कोई ऐसी इंटर्न करूँ जहाँ मेरे को मेंटर मिल जाए। बाई चांस ही वॉज अ वेरी गुड मेंटर टू मी, तो मेरे को सैलरी उतनी मैटर नहीं की, है ना। बट व्हाट आई एम सेइंग इट, ही वाज पेइंग मी इन एक्स, वहीं पे सेम अभी जो मैं करंट स्टार्टअप हूँ दैट इज पेइंग मी वाई, व्हिच इज लेवल अबव दैट, है ना। तो बाहर के स्टार्टअप्स आर थ्रोइंग मनी एट यू, है ना। बट यहाँ के इंडियन स्टार्टअप्स आप आर लिटिल इंटरनेशनल स्टार्टअप में कंसिस्टेंटली, काम कर रहे यूरो बेस्ड स्टार्टअप। हो? ओके, ओके।
हम्म, ये चीज का मेरे को नहीं पता था। सो नाउ मैंने एक चीज देखी है आपकी बायो में भी लिखा हुआ है, यू आर, क्या था वो, म्यूजिक रिलेटेड था ना कुछ, कि अभी हटा मतलब लिए हैं, नहीं नहीं यार, बायो में मेरे वो रहेगा हमेशा भाई। सो प्रोफेशनल म्यूजिक म्यूजिक प्रोड्यूसर सिंस 3 years। तो क्या जर्नी क्या रही है, आर यू अ म्यूजिशियन हु कैन डू एमएल और एमएल हु कैन डू म्यूजिक? यार इसका सिंपल बात यह है कि आई हैव अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड विथ मी जो मेरे को कॉलेज में मिला था। सो आई बैंगर वाज सॉन्ग्स, बैंगर सॉन्ग्स मैं शेयर करूंगा, थैंक यू भाई, थैंक बैंगर यू, सॉन्ग्स। थैंक्स अ लॉट भाई, थैंक्स अ लॉट। सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं पहले से हिप हॉप सुनता रहता है ना, टूपाक हो गया, कान्ये हो गया, एम हो गया अपना, तो उन सब सुनता रहता। देन आई वाज आल्सो वेरी मच इनटू डीएचएस, डीएचएस मींस देसी हिप हॉप है ना, तो आई वाज वेरी मच इनटू कृष्णा एंड सीधे मौत स्टफ है ना, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ये नहीं कि अभी वो फेमस हुए हैं, बहुत पहले से है ना, कृष्णा रागा सीधे मौत बहुत टाइम से सुन रहा था मैं। तो कॉलेज में आई मेट दिस गाय एंड आई रिमेम्बर आई वाज लाइक, उस दिन सीधे मौत की एल्बम आई थी, लंच लंच ब्रेक ब्रेक, है ना, लंच या, ब्रेक आई थी। हाँ, और नेक्स्ट डे, और वो कॉलेज का दूसरा दिन था हमारा, और अच्छा, मैं ढूंढ रहा हूँ कोई बंदा कि जिसने लंच ब्रेक सुनी, क्योंकि मैं अधिकतर उसके पीछे सुन के पागल हो गया था। इट वॉज सच सो गुड है ना। हम्म, मैं अगले दिन कोई बंदा ढूंढ रहा था कि यार किसने सुनी हो, बाई चांस को वो मिल गया है ना, उसने बोली सुनी, बाई चांस वो रैप भी करता था। हाँ, मैंने उसका रैप सुना, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं हो गया कि भाई दिस इज समवन हु हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो आई वाज लाइक कि भाई तू गाने बना, तू गाने बना है ना। तो ही वाज लाइक पुटिंग सॉन्ग्स, 3 4 5 महीने में एक गाना, प्लस कोई रैंडम बीट उठा रहा है यूट्यूब से। तो आई वाज लाइक चल मैं असिस्ट करता हूँ। तो देन आई स्टार्टेड टू मेक म्यूजिक। इसके पहले मैंने एक दो बार ट्राई कर रखा था, बट मैंने ट्राई करके छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को था कि इसमें बहुत एफर्ट है। हम्म, बट भाई वो बंदे में इतना पोटेंशियल था ना कि मैं मोटिवेट हो गया। तो मैंने मिडी वे स्टार्ट कर दिया बनाना, और फिर हाँ, तो मैंने तब से बनाना स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर में ही। एंड अब तो 3 साल हो गए करते करते ऑलमोस्ट है ना। और इट हैज बीन गोइंग वेरी गुड। आई एंजॉय दिस प्रोसेस। अब तो खैर बहुत कम टाइम मिलता है आजकल, बट इट्स मोर लाइक नाउ आई एम एट सर्टेन लेवल कि मैं अभी भी अगर बैठ जाऊँ बनाने कुछ नया, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 1.5 घंटे में कुछ नया अच्छा सा कुछ बना के छोड़ दूंगा। तो एंड आई कैन सेंड इट टू रैपर्स एज वेल सम है ना, तो वन ऑफ सम ऑफ माय फ्रेंड्स। तो या दैट्स द केस। बट इट इज समथिंग विच म्यूजिक इन जनरल इज समथिंग दैट हील्स मी अलॉट है ना। इवन इन माई डिप्रेशन फेज, रात में मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, म्यूजिक मेरे को हील करेगा, नॉर्मली भी हील करेगा। और तो इवन मेकिंग म्यूजिक, अगर मेरे को कभी लग रहा है कि यार आज बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना, या कुछ हो रहा है, आई विल स्टार्ट मेकिंग म्यूजिक है ना। आजकल बहुत कम हो गया उसकी फ्रीक्वेंसी, बट यप, आई लव मेकिंग इट एंड आई लव डूइंग इट। आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ माई पैशन है ना। कल को बाई चांस से मेरे करियर में कन्वर्ट हो जाता है तो आई एम हम्म, हैप्पी, आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। बट यहाँ मेरा सपना भी है कि कल को खुद का स्टूडियो बनाना है फ्यूचर में। हाँ, तो हम्म। बिग ड्रीम्स। अरे मैं, मेरे को आज भी याद है, मैं सीधे मौत का जब वो गाना सुनता था ना, दिस वन चेयर्स टू माय बुरे दिन, ओ भाई क्या लाइन थी वो, मजा आया था। मतलब सीधे मौत तो सुनना दिल दिल, अब मैं ना अभी, मैंने, मेरे को नहीं पता था, मैं इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम स्नैपचैट कुछ नहीं चलाता, तो इनका ना कुछ कोई मीम वगैरह वायरल हुआ था, इनको ना लोगों ने अभी थोड़ा रिसेंटली काफी हाइप अप हो गए थे। तो मैंने ना किसी को बोला कि भाई तेरे को पता है यार, तूने कभी सीधे मौत सुना है? तो कहता है कि तू भी वही वाला फैन है ना, सीधे मौत के 4 गाने का नाम सुना दे। मैं कि तू यार नाम पता है सुन। क्या, इंस्टा पे मैंने और आकाश ने कुछ टाइम पहले हमने एक रील डाली थी है ना। तो सीधे हाँ, मौत फैन टाइप रील थी, वो रील वायरल हो गई कुछ 100 200 की। उस पे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि अरे भाई तू तो ऐसी फैन है क्या सीधे मौत का, ये तो ऐसी फैन है सीधे मौत की। बोले कौन बताए भाई कि हम सीधे मौत तब से सुन रहे हैं भाई जब तुम जानते भी नहीं जब थे वो बिल्कुल मेन भी। स्ट्रीम भी नहीं थे भाई, जब उनके, भाई, जब बादशाह ने उनके साथ कोलैब किया था ना, भाई और क्या बादशाह भाई दिन था भाई वो। क्लासिक क्लासिक वॉल्यूम भाई, कितने टाइम पुराने पहले से सुन रहा हूँ मैं सीधे मौत, आई कांट इवन काउंट भाई। हम्म, लॉन्ग लॉन्ग टाइम भाई। मैंने, मेरे को याद नहीं मैंने कब से सुना, पर काफी टाइम हो गया, मतलब काफी टाइम हो गया, नमस्तुते टाइप के टाइम से, बहुत, अब मेरे ख्याल से आप तो उससे हम्म। पहले से सुन रहे होगे शायद। हाँ, उससे पहले सुनना से हाँ, पहले। मैं एक जॉइंट इन द बूथ ये सब तब उनका चल रहा था, क्या जिंदगी, तब वो इतने फेमस तो नहीं थे, बट उनके गाने बहुत बैंगर होते थे। अब आई गेस जो उनकी ये DL91 वाली मिक्स टेप आई, वो तो मैंने ज्यादा नहीं सुनी, बट उससे लास्ट गाना जो मैंने उनका लूप पे सुना था बार बार, वो था रेड। रेड था, हाँ भाई क्या गाना था वो जो उनका आया था, क्या ट्रू ट्रू गाना ट्रू। था उसमें, वो जो लाइन थी ना, खुद पे भरोसा इतना, कॉलेज भाई जाके डिग्री रेड ले ली। गाना इज वेरी गुड भाई, रेड गाना इज वेरी गुड, एक्सेप्शनली वेरी गुड इवन इन प्रोडक्शन है ना। हाँ करके वो जो पियानो बजाता है यार, आइडिया सीरीज है जिसकी, एक उसका मेरे को बहुत अच्छा लगता है, शायद आपने भी इसका सुना आइडिया होगा। नहीं है, इसका आइडिया आइडिया नहीं सीरीज है, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है मेरे को उसका। म्यूजिक है। चले यार, यस यस म्यूजिक यस, पे तो हम पूरे दिन ही बात कर सकते हैं, कुछ भी बोलते एग्जैक्टली भाई, रहो। म्यूजिक तो एंडलेस है भाई। म्यूजिक पे नहीं कभी कन्वर्सेशन खत्म हो सकती। तो अभी एक, हाँ, पर मेरा क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला मेरे को अभी तक। आर यू हाँ, अ म्यूजिशियन हु कैन डू एमएल और एमएल हु कैन डू म्यूजिशियन? आई एम प्रोफेशनली समवन हु कैन डू ML and I'm passionately a music producer is what I would say है ना. My ओके, passion still relies towards music a lot. Uh,
आई ड्रीम टू परस्यू इट एज अ करियर, बट मेरे को लगता है इट्स वेरी टफ टू पेव द वे, है ना। प्लस हम्म उसमें बहुत मेहनत भी लगेगी, और उतनी मेहनत करने का ना पास अभी टाइम है। तो प्लस टेक इज पेइंग मी प्रीटी वेल राइट नाउ, तो हैप्पी। वही है, मर्दों को अपने सपने छोड़ने ही पड़ते हैं। यार मैं बहुत सपने छोड़े हैं। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल आल्सो, क्लास लेवल तक खेला था मैंने, तो वो भी छोड़ दिया था मैंने, तो ये आई लेफ्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड। मेरे को ना इतना दुख लगता है, मैं ना छोटे होते क्रिकेट खेलता था, बहुत क्रिकेट, मतलब मैं 7 साल का था, मैंने तब से प्रोफेशनली खेलना शुरू कर दिया, बहुत मस्त खेल रहा, ठीक है। तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि मेरे को चंडीगढ़ भेज दो, मेरे को चंडीगढ़ जाना है, मैं वहां जाके कोचिंग लूंगा, ये सब वो सब, ठीक है। तो बहुत गाली देते थे कि मारते तो नहीं, ठीक कह सकता है ऐसे ऑन कैमरा, वरना सच में मार देंगे। पर बहुत बहुत बोलते थे कि क्या कर रहा है, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, इंग्लिश सीख ले, तेरा कुछ एवरी डे बन एवरी, रहा है। एंड मैं बोलता हूँ गलत भी नहीं है यार, मतलब हाँ। इट्स अ फैक्ट कि व्हेन यू विल स्टार्ट अर्निंग इट विल ऑल कम टू रियलिटी, और तुम्हारे पेरेंट्स को भी तो अच्छा लगेगा। जनरली बोलता हूँ, पेरेंट्स विल वेरी हैप्पी विथ यू कि यू आर अर्निंग राइट नाउ, है ना। आई रिमेंबर अभी 2 महीने पहले तक माय फादर वाज लाइक, यू जस्ट कीप ऑन स्टडिंग, अभी मास्टर डिग्री भी कर ले, है ना, मे बी ट्राई गेट दिस, मे बी ट्राई गेट दैट, है ना, नाउ आई एम डूइंग जॉब, ही इज हैप्पी, आई एम हैप्पी, बट ही स्टिल लाइक, ओ तो स्टिल अभी पढ़ाई पे फोकस कर, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, है ना, छोटी छोटी चीजों से नहीं होता, टेक द बिगर स्टेप। तो और मेरे को लगता है वो हम्म गलत नहीं होते कभी, दे आर ऑलवेज राइट, है ना, इट्स यू हैव टू फिगर आउट द लाइन बिटवीन व्हाट दे आर सेइंग एंड व्हाट यू हैव टू डू, है ना। नहीं वही ना, अभी देखो, अभी इंडिया वर्ल्ड कप हारी, ठीक है। उसके बाद आईपीएल हम्म। ऑक्शन हुआ, तो आईपीएल ऑक्शन में ना प्लेयर्स बिकते हैं, उससे पहले हुआ था आई गेस, तो प्लेयर बिकते हैं। तो मेरे पापा को मैंने आके बोला, मैं पापा ये देखो, ये 16 करोड़ का बिका, ये 18 करोड़ का हम्म। बिका। तो कहते तुझे शर्म नहीं आई, तूने क्रिकेट क्यों नहीं खेला? मैं कि ये क्या बात हुई, मैं बड़े डबल स्टैंडर्ड आपके, जब खेलना था तब खेलने नहीं दी। क्रिकेट यार, इन सब चीजों में वही बात है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू अर्निंग समथिंग रेपुटेशनल आफ्टर परस्यूइंग सच करियर्स इज वेरी लेस, है ना। वेरी लेस, क्योंकि कंपटीशन इज क्रिकेट वे में वे टू दिक्कत मच। यार है कि मेरे को क्रिकेट में भी या फुटबॉल में, अगर तुम स्पोर्ट्स सेट जाते हो, कल को तुम्हारा नहीं होता नेशनल लेवल पे कुछ, हम्म तुम डोमेस्टिक खेलते रह जाओगे, वो भी हम्म नहीं हुआ, तुम ज्यादा से ज्यादा कोच बन जाओगे, पीटी टीचर बन जाओगे एट द वेरी लीस्ट। हम्म फ्रैंकली बोलो, बहुत सारे मैक्सिमम पीटी टीचर बन जाते हैं यार, क्योंकि उन्हें मैक्सिमम। दे हैव टू अर्न अ लिविंग, है ना, दे हैव टू अर्न अ लिविंग, है अगर ना। कुछ और तो सीखा ही नहीं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली कुछ तो करो ना, जिंदगी में पैसे तो कमाना ही है हाँ। जीने के लिए, है ना। तो वही फैक्ट है। और पढ़ने को सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि तुम पढ़ लोगे तो तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे यार। कल मैं बोलता हूँ कि हमने शायद इतना पढ़ लिया है, कल को हम अगर कोई खुली सड़क पे भी छोड़ देना, तो हम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे, कहीं ना कहीं तो 10,000 की नहीं तो 5,000 की कुछ ना कुछ जॉब निकाल लेंगे, है ना, आउट ऑफ एजुकेशन इटसेल्फ, है ना। हम्म तो दैट इज व्हाट एजुकेशन गिव्स यू, है ना। ओके, मेक सेंस मेक सेंस। सो नाउ लेट्स हैव अ रैपिड फायर राउंड। और अगर कोई हम्म। सोच रहा है ये पीछे पिल्लो क्यों पड़ा, मेरी पीठ बहुत दर्द हो रही है भाई, मैं सुबह से बैठ बैठ के काम कर रहा था, तभी पिल्लो रखा है। तो यस, अभी करते हैं रैपिड फायर राउंड। सो एआई, अभी इसमें सिर्फ कुछ नहीं सोचना, आंसर देना, एआई विल रिप्लेस जॉब्स और क्रिएट मोर। क्रिएट मोर। व्हाई? ये व्हाई वाला मैं आज पूछना चाहता हूँ, व्हाई? भाई इट्स सिंपल रिवॉल्यूशन जो अराउंड 2000 हुआ था, 2000 में, कि कंप्यूटर केम, है ना, यू गॉट एन नंबर ऑफ जॉब्स इन कंप्यूटर, टेक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, है ना। इट्स सिमिलर ओनली, बट ये है कि जॉब्स जाएंगी, बट कमिंग फ्यूचर में आई गेस आ भी जाएंगी, इज व्हाट आई फील, है ना। कि और टेक रिलेटेड तो बहुत सारी जॉब्स जाएंगी, बट बाकी सारे बहुत सारे और फील्ड्स होंगी जहाँ पे जॉब्स आ भी जाएंगी। मेरे ख्याल से हार्डवेयर में बहुत सारी जॉब्स आने वाली है ना, लोग रियलाइज नहीं कर रहे, हार्डवेयर में बहुत जॉब्स आने वाली है, क्योंकि एआई इंटीग्रेट करोगे तुम हार्डवेयर में ही ना एट द एंड। अभी कुछ प्रद्युम्न भाई, इतनी 2 बैंक अकाउंट खुलाओ। एक भाई प्रद्युम्न भाई बहुत बढ़िया, ही इज डूइंग इट एट सच अ यंग एज, है ना, बिफोर कॉलेज। क्या भाई बात, क्या ही विल, बिफोर कॉलेज है? कॉलेज में नहीं है भाई अभी तक, वो अभी कॉलेज कितनी में, उम्र है उनकी? एज फार एज आई नो ही इज 19 आई गेस, है ना, बट उसने ड्रॉप ले रखा है अभी, बट अच्छा। ही इज डूइंग इट ऑल दिस बिफोर इवन एंटरिंग कॉलेज, एंड इट्स फॉर द fact that he might be getting really good by the time he concludes his college, है ना, he will doing very, I know he will doing very good in life, मेरा very good मेरे guy। को सपना कह लो या चेकलिस्ट कह लो, उनको मेरे को आपकी जगह पे यहाँ पे एक बारी देखना। क्योंकि मैं उस यार। बंदे को भाई, जब वो बात करता है ना, उसने जितनी भी वीडियो हम्म। डाली होती है, वो पैशनेट है उस चीज को लेके, वो पागल है, एग्जैक्टली वो पागल है उस एग्जैक्टली चीज को एग्जैक्टली लेके। वो एग्जैक्टली। मजा आता है देखने में भाई। ओके, वन स्किल एवरी एमएल इंजीनियर इज इग्नोरिंग राइट नाउ। एडीए। ओके, ओवर हाइप्ड इन एआई राइट नाउ। ओवरहाइप्ड इन हियर राइट नाउ, हाँ। बेंचमार्किंग। ओके, मेरे को लगा कोई ट्विटर अकाउंट का नाम लोगे। पाइटॉर्च और टेंसरफ्लो। फाइट आउट। बिल्ड फास्ट और बिल्ड परफेक्ट। As a beginner, build perfect, as an elite or as an working point of perspective, build faster। ओके, वन ब्रूटल ट्रूथ अबाउट बिकमिंग एन एआई एमएल इंजीनियर।
You have to be up with the latest trends no matter what you are studying, और उसमें तुम्हारी फट जाएगी. Okay. How do you stand out in a saturated AI market? By learning the latest trends, as I said, Okay. Freelance versus startup job. Pick one. startup job. Okay. Music production or AI? What do you enjoy more? Tough one, but I would say music production only. यार. Okay. One habit that made you successful. Uh, One habit that made me successful. Uh, uh, Never losing hope to succeed maybe. मतलब ये हैबिट नहीं हुई, ये तो फैक्ट हो गया यार. हैबिट तो मेरी ऐसी कोई हैबिट नहीं है इससे सक्सेसफुल हुआ हूँ ऐसा. मतलब आई एम वेरी रैंडम काइंड ऑफ पर्सन. कभी भी कुछ भी कर लेता हूँ मैं. ऐसी कोई हैबिट तो नहीं, बट हाँ, शोइंग अप डेली इज व्हाट आई कैन से कि यू हैव Okay. टू बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी इज व्हाट आई फील कुड बी काउंटेड. Okay. How do you deal with burnout? I know the answer, but still. या बर्नआउट से यार, आई हैव सम रियली गुड फ्रेंड्स टू टॉक टू. तो Eh, आई मोस्टली टॉक टू देम, है ना. एंड प्लस म्यूजिक तो है ही, बट आई फील लाइक यू शुड हैव अ फ्रेंड or some friends who you can talk to openly about something, है ना. At any point of time मेरे ख्याल से कुछ ऐसी चीज होती है जो तुम पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, बट दोस्तों के हाँ. साथ कर सकते हो, है ना. तो ऐसा एक क्या ऐसे ही कंसोल मल्टीपल वो भी दोस्त नहीं होंगे. करेंगे. कंसोल वो भी नहीं करेंगे. उम्मीद मत लगाना. And I would say कि also have some female friends around you helps a lot. हाँ, अलॉट क्योंकि वो कंसोल कर देंगे. Exactly. ओके. स्लीप और लेट नाइट कोडिंग. Late night coding. No, कोडिंग तो मैं नहीं बोलूंगा यार. Nowadays I am not very much into coding. मतलब तो क्लाउड और कोडेक्स ही मेरा मैक्सिमम काम कर रहा है, बट या अगर लेट नाइट ग्राइंड है तो लेट नाइट ग्राइंड इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग. हाउ इज योर स्लीप शेड्यूल? Fucked up. I आजकल it's totally fucked up. I'm sleeping at around 4:30 a.m. in the morning. ओके. I'm waking up at around 11. I'm having brunch, not even breakfast. And my food schedule is fucked up, sleep schedule is fucked up. मैं कल ही वो आज मेरा असाइनमेंट था, तो मैं कल रात को बोला आई शुड हैव अ नाइस स्लीप, तो मैं 2:30 बजे सोने चला गया स्टिल, क्योंकि मेरे को सुबह 7 बजे उठना था. तो मैं 2:30 बजे सोने चला गया, बट यू वोंट अंडरस्टैंड, मैं 4:30 बजे तक नहीं सो पाया बेड पे, क्योंकि मेरा स्लीप शेड्यूल फकअप हो चुका है, मेरे को नींद नहीं आई. ओके. इस तरह से मेरा स्लीप शेड्यूल फकअप हो चुका है. किसी ने कहा था कि अगर आपको पूछना है कि इंसान कैसा है उससे उसका स्लीप शेड्यूल स्लीप पूछ लो. शेड्यूल. जो आंसर बोलेगा वो ही है. ओके. तो अभी ना रिकॉर्डिंग ही बंद कर दो. बस अभी बाय बाय कर दो. बाय बाय भाई, बहुत मजा आया रिकॉर्ड करके. भाई गुड सी ऑफ कर दे, भाई गुड सी ऑफ कर दे. सी ऑफ हाँ. भाई, सी ऑफ. हाँ. चलो ऑल राइट काट. गाइस, थैंक्स. हाँ, ठीक है, ठीक है.